5.4 was remaining are others also. From 5.3 only two questions are there, and it was completed yesterday. 5.3 was completed now. Students, tell me, today 5.3 is completed already. Yes, sir. Yes, sir. And today we will read 5.4. Yes, sir. Okay. Now open page number 97. 5.4 exercise. What is the measures of right angle, straight angle? You know, I think this question will be done by you because the measures of right angle and straight angle you already know. Any of you tell me what is the measures of right angle? Right angle का measurement कितना होता है? 60 degree. 90 degree. Okay. And straight angle? 180 degree. 180 degree. Very good. Okay, Ambuj. And so the first question you will do yourself, no? Yes, sir. Okay. And the second one, listen. For the solution of second one, you have to write only true or false. And you will reply me. The measures of an acute angle is less than 90. Acute angle is true or false? True. True. You know the measures of acute angle is less than 90 is true. Very good. Now the second part, B. Second B is the measure of an obtuse angle is less than 90. Is it true? False. False. No, sir. The measure of obtuse angle is how much? कितना होता है obtuse में? More than 90. And less than 180. 180 degree. Okay. Obtuse angle more than 90 and less than 180 होता है, इसलिए it is wrong. It is false. Given less than 90 is false. Okay. The C part of this question is measure of reflex angle greater than 180 degree. Then tell me, is it true or false? Measure of reflex angle is more than 180 degree. It is true? True it is. Okay. And the D part, that is last part of this question, is measure of one complete revolution. One complete revolution, how many angles? That is the complete angle. 360. 360 degree. It's true? True? Yes, sir. True. True. Very good. Now, one more. E part is there. एक और part है इसमें. देखिए, ये magnitude of angle A is okay. I am writing it at the board. Exercise 5.4. Question 1 and E part. It is written magnitude. If magnitude of angle A is 53 degree. Students, it is written M angle A. M angle A is written as. तो आप क्या पढ़ेंगे सुनिए. तो पढ़ेंगे magnitude of angle A. You will read it. Magnitude of angle A. A is 53. 53. Now, magnitude of angle B. It is written and magnitude of angle B is how much? Don't talk your personal talking. आप अपनी बात जो है करते समय जब पेरेंट्स से या अपने फैमिली मेंबर से बात करते हो तो माइक को म्यूट कर लो. Mute yourself. Your sound is coming to everybody. आप पर्सनल बातें बोल रहे हैं वो सबको सुनाई दे रहा है. म्यूट योरसेल्फ एंड टॉक. बिना म्यूट किए आप अपने घर के मेंबर से बात मत कीजिए या किसी से भी.
Okay. Now magnitude of angle B is 35 degree is written. 35 degree. And then magnitude of angle A is greater than magnitude of angle B. If magnitude of angle A is greater than magnitude of angle B, it is correct, true or false? बताइए. Magnitude of angle A is 53. Magnitude of angle B is 35. Then here is written A is greater than B. A is greater than B or not? A B से बड़ा है कि नहीं? True. True. Very good. तो बड़ा है. बड़ा है. That's why it is true. Yeah, भाई. Okay. जाओ. Now, question number 3. Write down the measures of some acute angles. बोलो. भाई दिक्कत नहीं करता. Acute angle, student, you already knows the measures of acute angle. Name any two angle. कोई भी दो acute angle का measurement बताइए. Acute angle कोई भी दो बोलिए. Tell me. 40 to 90 से छोटे. सुनिए, 0 से बड़ा और 90 से छोटा कोई भी दो है. 30 degree, 40 degree, 50 degree, 60 degree, all are acute. You will write any two acute angle yourself. Yes, sir. Okay. Yes, sir. आप इसका आंसर अपने से लिख लेंगे. Okay. You will do yourself. आप दो acute angle लिख लीजिएगा. And for B part of this question, question number 3 part B is some obtuse angle. Obtuse angle भी आप लिख सकते हैं. हम मुझे कोई बताएं two obtuse angle. Any आप कोई भी स्टूडेंट बताए मुझे two obtuse angle का मेजरमेंट बताइए. 120 degree and 130 degree. Very good. Obtuse below. 100, Any. 100 degree, 110 degree. Okay, you will write some obtuse angle measurement yourself. It is no doubt. There is no doubt, na? No. आप अपने से लिख लेंगे. Very good. So I am not solving this question. It is given homework. And okay, sir. 4 question. Question number 4 is measure the angle given below using protractor and write down the measurement. कल आपने पढ़ा था. Yesterday it was taught by me how to measure the angles. You have already studied yesterday that how to measure the angles. कैसे measure करते हैं protractor से with the help of protractor. You know, आपको कल बताया गया था. आप इसका measurement कर सकते हैं. Yes, sir. हम इसको कर लेंगे. कर लेंगे. मैं थोड़ा सा हिंट करता हूं इसको. 4A प्रोटेक्टर को एडजस्ट कैसे करेंगे देखिए. खाली है. Students, you have to measure this angle. Then you will put your protector at any line. आप इसमें से किसी भी लाइन पर प्रोटेक्टर को पुट कर दीजिए. बल्कि नीचे वाली लाइन पर रखें तो अच्छा रहेगा. इस पे रखिए. Your protector will be put on this line and the middle point of this protector will be at this point and the line will be like this and your protector will show like this. आपका प्रोटेक्टर ये शो करेगा. इधर से जिधर 0 आपका लिखा होगा वहां से 0 से आप स्टार्ट करोगे एंड इट विल बी 60 डिग्री. आई थिंक मैं अपने से बता रहा हूं कि ये 60 से लेस है तो 60 नहीं होगा, 45 या 40 होगा. जो भी होगा आप मेजरमेंट के बाद लिखेंगे. एनी ऑफ यू मेजर.
आप में से कोई मेजर करके प्रोटेक्टर से बताएं कि ए वाला कितना डिग्री है, ये ए का कितना मेजरमेंट आ रहा है, आप मेजर करके बताइए मुझे। स्टूडेंट्स, कितना आया मेजरमेंट? हाउ मच कम्स? ये कितने डिग्री आ रहा है बाय मेजरिंग प्रोटेक्टर? कैन यू रिप्लाई मी? किसी ने मेजर किया? सिवेश क्या कर रहे हो? व्हाई नॉट यू मेजरिंग? आप सेल्फ मेजरमेंट कीजिए, ये प्रैक्टिकल वर्क है, इसको आप जब करोगे तभी आपको आएगा। मैं बता दूंगा तो नहीं आएगा, आप खुद ही इस प्रोटेक्टर को इस लाइन पे रख करके मेजर कीजिए कितने डिग्री आ रहा है। अविनाश कुमार, आई एम आस्किंग टू एवरीबॉडी, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, जो मेजरमेंट कर ले रहा है वो बताए। नन ऑफ यू मेजर्ड, कोई नहीं मेजर किया अभी तक। शिवांगी बताओ। How much? 45 degree. 45 degree. 45 डिग्री। 45 degree. 45 degree, sir. ये 45 डिग्री बेटा मैं अपने मन से लिखा हूँ, मैंने मेजर नहीं किया है, मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है। Sir, 45 degree. 45 degree. 45 आ रहा है। Yes, sir. और किसी का भी 45 आ रहा है? मेरा 40 आ रहा है। और बी का मेजरमेंट 90 आ रहा है। ये बताएं बी का कितना आ रहा है? बी का ये सब मेजरमेंट आपको सेल्फ करना है, ये मैं बोर्ड पे नहीं बता सकता बेटा, ये प्रैक्टिकल वर्क है, आपको खुद करना है। मैंने कल बताया था हाउ टू मेजर एंड यू विल फॉलो हाउ मेजरमेंट प्रोसेस को फॉलो कीजिए और मेजरमेंट फाइंड करके लिखिए उस एंगल को, वहां पे फिगर बनाकर अपने कॉपी में उस वहां पे आप लिखोगे इतना डिग्री है। 140 डिग्री। सेकंड वन degree, sir. 120 degree. 120 डिग्री, ओके ठीक। 80 120 डिग्री इज करेक्ट। 30 degree. देखिए पहला 45 डिग्री, मत ले जाइए सुनो फर्स्ट नंबर 45 आएगा, ना। सेकेंड नंबर 120 डिग्री आया है आपका? Sir, 125. नहीं 20 आएगा। एंड थर्ड सी कितना आ रहा है? सी तो Sir, सबको 90 degree. Sir, 90 degree. इट इज क्लियर विदाउट मेजरमेंट यू कैन से ओके। एंड फॉर sir. डी का पहला एंगल बताइए कितना आ 40 रहा है? degree. Sir, 40 degree. 40 डिग्री। इसमें देर आर 3 एंगल्स को मेजर करना है आप। The third angle is 90 degree. First angle is 35 degree, nearly 35 not. और बताइए, नहीं समझ आ रहा है। क्या उसको मेजर करना पड़ेगा आपको? प्रोटेक्टर रख के मेजर करेंगे तब आएगा प्रोटेक्टर।
प्रोटेक्टर में आप यहाँ जो देखिए बुक में आप देख रहे हैं, बुक में नहीं दिख रहा होगा ना, बुक में कैमरे से नहीं दिख रहा होगा, बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये जो मेजरमेंट है, दैट मेजरमेंट शुड बी मेजर्ड बाय प्रोटेक्टर ओनली। यू टेक हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड मेजर। आप प्रोटेक्टर से मेजर करके लिखिएगा। इट इज योर प्रैक्टिकल वर्क, होम वर्क। सर उसके ऊपर वाला बता दीजिए एक बार। कौन सा नंबर बोलो? नंबर बोले 4 का A B C D कौन बताना है? C तो 90 है। तो D, हाँ D में आप ऐसे मेजर करेंगे, देखिए 20 डिग्री। D को मैं फिगर बना रहा हूँ। This type figure is given. For D part, ये फिगर आपको दिया है ना? You have to measure the angle D. There are 3 angles in D figure. This figure, you will put your protector. You will put your protector on this line. And your protector will show the measurement. आप इधर से 0 काउंट करेंगे, 0, और how much this is coming. ये कितने डिग्री आ रहा है? नो सर। बोलिए। यस सर। ये कितने डिग्री आ रहा है? आप इधर से 0 काउंट कीजिएगा। देखिए ये एंड पॉइंट यहाँ है और लाइन जहां से गई है उधर से 0 आप काउंट करेंगे। यहाँ पर आप प्रोटेक्टर का पॉइंट रखोगे। You will put the center point of protector at this point, and 0 will count it from here. And how much degree comes? 30 degree. 0 and this line, that will be your 40 डिग्री। 30 degree. 40 degree. 40 degree. 40 degree. 40 डिग्री। Okay. How much comes? 30 degree. आप अलग अलग बता रहे हो, आप मेजरमेंट कर लीजिएगा। 30 degree. प्रोटेक्टर नहीं लाया हूँ बेटा, नहीं तो इसको मेजर करके मैं बता देता, और आप मेजर करके लिख लीजिएगा। और इसको कैसे? हाँ, इसको 120 के आसपास ही आएगा, और ये 90 के करीब है। ये 90 है बेटा। ओके, 90 सर, ऊपर वाला 125 जो है उसी के आसपास होगा। Now question number 5. Which angle has the large measurement? Question number 5. Question number 5 में फिगर बनाया है। एंगल A and एंगल B is shown. और क्वेश्चन बना है। हाँ ओके, मैं आई एम ड्राइंग आल्सो। मैं इस फिगर को बना रहा हूँ। Shape. This figure is drawn. Angle A and angle B is drawn already here, and you have to measure angle A and angle B. This one A and this one B. How much measurement comes of angle A? What is the measurement of angle A? 40 degree. Yes sir. And angle B? Angle B is comes how much? Yes sir.
एंगल बी कितने डिग्री आ रहा है? 80 डिग्री। Angle B 65 degrees. 90 डिग्री। 65 में भी करेक्ट। भाई क्या हो गया बे? ओके, नाउ फॉर देखिए ये मेजरमेंट करके आपको लिखना है, फिर बना लेना एंगल। दीजिए बे, कमला कॉल और थोड़ा एक बार के देख लीजिए। You will measure angle and draw in your book, text notebook. Yourself, the measurement will be done by you yourself, and you will write the measurement of that angle at that place. Here we will write angle measurement A. Here we will write angle measurement B. Okay. Yes, sir. Question number 6. From these two angles, which has larger measure and estimate them, confirm by measuring them. Okay, 6th number. Yes, sir. Sir, exercise number 54. सर आपका वीडियो सर मैं म्यूट किया हूँ। एक्सरसाइज नंबर Students, these two angles are drawn in your book, and you have to measure without measurement. आप बताइए बिना मेजरमेंट का बताएं कि कौन बड़ा है, फर्स्ट इज ग्रेटर और सेकंड इज ग्रेटर, कंफर्म। मेयर ऑब्जर्वेशन से बताइए, केवल देखकर बताइए कि विच वन इज ग्रेटर, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड इज ग्रेटर ना, ये सेकंड का बड़ा है, सेकंड इज ग्रेटर, सेकंड इज ग्रेटर। Then after your major observation, मेयर ऑब्जर्वेशन से आपने बताया कि सेकंड बड़ा है, ये बात सही है। मेजरमेंट आप करेंगे तो इसका बड़ा आएगा, इसका छोटा आएगा। आफ्टर मेजरमेंट यू विल राइट द मेजरमेंट, कितना बड़ा है कितना छोटा है आपको मेजरमेंट के बाद पता चलेगा। ओके, यू विल मेजर एंड राइट द मेजरमेंट एट दिस प्लेस एंड दिस प्लेस। Okay, up to question number 6, that's all are given for your practical work. You have to measure and write all questions nearly up to question 6 was given to measurement from question number 4 to 6. 4 to 6 is given for your measurement. The angles is drawn already, and you have to measure those angles with the help of protector and write down. इन एंगल्स को आपको प्रोटेक्टर से मेजर करके और वहां लिखना है और आंसर बताना है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बोलिए, आप कुछ पूछना चाहते हो? क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने बताया। आप क्या कुछ और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ बोलिए। सर 4 और 5 देखिए 4, 5, 6 समझा दीजिए ना अच्छे से। सब में मेजरमेंट करना है प्रोटेक्टर से, तो प्रोटेक्टर आपके पास है और बुक में फिगर भी बनाया है, वो भी आपके पास है। आप प्रोटेक्टर को बुक में रखिए, मेजरमेंट कीजिए, उसका मेजरमेंट लिख लीजिए और बता दीजिए आंसर जो पूछ रहा है उसका। मेजरमेंट करने के बाद आंसर आपको मिल जाएगा। 5 4 समझा दीजिए ना अच्छे से। 5, 4 मैंने इसमें क्या समझाना है बेटा, ये एंगल दिया है, मेजर करके लिख दो। क्या इसमें नहीं समझ में आ रहा है? व्हाट इज डिफिकल्ट?
आर यू लिसनिंग टू मी अटेंटिवली? यदि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तब न समझ में आएगा। केवल बिना सुने आप बोल देंगे कि इसको बता दीजिए, उसको बता, मैं तो खुद ही 2 बार बता रहा हूँ। Sir, अब the video is paused. ये क्यों बीच में बोलते हो वीडियो इज पॉज? आई एम सीइंग एवरीथिंग हियर, दैट इज क्लियर। मे बी योर नेट प्रॉब्लम। 5.4 का first आप अपनी वीडियो को डिस्टर्ब करते हो और मुझे कहते हो कि पॉज है। आप अपना चेक कीजिए, मेरा पॉज होगा तो सबके लिए होगा। Sir, 5.4 first का B समझाइए अच्छे से। सॉरी 5B का क्या समझाना है, बोलो। 5B इज मेजर्ड, यू कांट मेजर द एंगल। एक्सरसाइज 5.4 का first का B समझाइए ना अच्छे से। एक्सरसाइज 5.4 का first का नहीं सर सेकंड का B 5.4 सेकंड भी समझाना है। यस सर। क्यों जो फ्लॉट करते हो रही है? इसमें ट्रू फॉल्स आपको लिखना है। हम जब ऑनलाइन क्लास बंद रहला त हम YouTube चलावत रही। क्वेश्चन सुनो। YouTube में चलावत। The measures of an obtuse angle is less than 90. Listen. Measures of an obtuse angle is less than 90. That is the false. Obtuse angle का मेजरमेंट मोर देन 90 होता है, लेकिन इसमें लेस देन 90 लिखा है, इसलिए ये फॉल्स है। तो और लेस कुछ कहाँ दिखा है? हाँ, लेस देन 90 नहीं लिखा है। 5 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी पूछे हो। हाँ, तो लेस देन 90 ऑब्ट्यूज नहीं ना होता है, मोर देन 90 होता है। दैट इज द फॉल्स। Now, stands question number 6. 6 up to 6 is over. True false. 6 तक आपको सेल्फ करने के लिए दिया गया है, that is homework. You will measurement will be done by you and right. From question number 7. Now see question number 7. Fill in the blanks with acute, obtuse, right or straight. ब्लैंक्स में आपको एक्यूट एंगल है, राइट है, ऑब्ट्यूज है ना, क्या है वो आपको लिखना है। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ द राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन राइट एंगल। 90 से जो छोटा एंगल होता है उसको क्या बोलेंगे आप? व्हाट यू विल से? आप एक्यूट एंगल। acute, less than 90 will be acute. So question number 7A, filling the blanks में आप acute भरोगे, you will feel acute. Okay, and question number B, listen to me, stands for 7B, an angle whose measure is greater than that of the right angle. क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए, राइट एंगल से बड़ा जो एंगल होगा उसको आप क्या बोलोगे? ऑब्ट्यूज। You will feel obtuse. श्रेया गुप्ता, are you listening to me? Listening to me? तो जब मैं पूछता हूं तो रिप्लाई देना है। A and B clear? Acute and obtuse? Then after C part, an angle whose measure is sum of the measures of two right angle is Straight angle. two right angle का सम क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल। Straight angle. Very good. Straight angle you will fill. For C में straight angle fill करेंगे। Okay.
10 minutes running time is going on. And D part. When the sum of the measures of two angles is that of right angle, then each of them is, listen to me, sum of measures of two angle. दो two angles का जो sum है वो right angle है. Listen, if the sum of two angle is right angle, then each of them is two angle. Each of them will be acute. Very good. Acute will be because the sum is 90 only. Sum 90 हो रहा है तो दोनों acute होगा तभी उनका sum 90 होगा. Okay? Acute. And the C, E part. When the sum of the measures of two angles is that of the straight angle and one of them is acute, then other is. इसमें कौन बोल रहा है जी? Who is talking between teaching? सर ऑब्ट्यूज एंगल होगा. बीच में आप बोलिए मत, नहीं तो मैं म्यूट कर दूंगा आपको. 2-4 दिन तक म्यूट कर दूंगा. Don't talk. If it is necessary, यदि आपको बोलना जरूरी भी है तो अपने को म्यूट करके बोलिए. E part. When the sum of the measures of two angle is that of the straight angle. दो एंगल को जोड़ने पर स्ट्रेट आ रहा है यानी 180 आ रहा है. एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट, उनमें से एक एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा? obtuse. The second angle will be obtuse. Then the sum will be 180. Obtuse भरेंगे लास्ट में. Okay, clear? Yes, sir. Students, clear up to question number 7? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And today only up to 7. आज 7 से आगे नहीं बढ़ेंगे. मान लीजिए आज 7 से आगे मैं नहीं बढ़ूंगा. केवल 7 तक ही आपका डाउट क्लियर होगा. उसके बाद कल पढ़ाएंगे. Tomorrow will be taught further from 7 onwards. 7 onwards will be tomorrow. 7 is over. 8 onwards. 8 से आगे आपको कल पढ़ाएंगे. 7 तक आपको जो डाउट है, अभी भी कुछ समय बचा है, कुछ मिनट्स बचे हैं, आप मुझसे क्लियर कर सकते हो. सर सेकंड वाला क्वेश्चन है वो फिर से बताइए. सेकंड का ई वाला क्वेश्चन बताइए. सेकंड का ई में ओके लिसन. सेकंड ई में लिखा है एंगल ए 53 डिग्री, एंगल बी 35 डिग्री. तो ए बी से बड़ा है कि नहीं है बताओ? जो 53 है वो 35 से बड़ा है ना बेटा. तो इसमें बड़ा दिखाया है. जब बड़ा दिखाया है तो आप ट्रू लिखोगे कि फॉल्स लिखोगे? You will write true or false. True ना? That is clear. तो यही आंसर है, ट्रू होगा. ट्रू. ओके ट्रू. Seventh B. 7B is an acute an angle whose measure is greater than that of the right angle. राइट एंगल से जो बड़ा एंगल होता है उसको आप क्या कहते हो? ऑब्ट्यूज ना. तो यू विल फील ऑब्ट्यूज. सर आवाज नहीं आ रहा है. आवाज तो जा रही होगी, मैं धीमे नहीं बोल रहा हूँ. ऑब्ट्यूज, द more than right angle is obtuse angle. और स्टूडेंट्स बताओ, आप लोगों को आवाज मेरी पहुंच रही है कि नहीं? अदर्स टेल मी. यस सर पहुंच रही है. पहुंच रही है ना? ठीक है. सेवंथ का एक बार और बताइए. 7th ए बताइए एक बार और. जब पहली बार बताते हैं तो ध्यान से सुना करो, आदत ये खराब मत करना है. ये 7th ए में
an angle whose measure is less than that of the right angle. Right angle से जो less angle है उसको आप क्या कहोगे? कौन सा एंगल बोलोगे? बोलो. The angle which is less than right angle, you will tell the name of angle. Acute or obtuse? Acute बोलोगे ना? Acute is your answer. Acute होगा. Less than 90 acute, more than 90 obtuse. समझाया जा चुका है, उसके बाद भी अनावश्यक तुम लोग समय वेस्ट कर रहे हो. कोई इजीली समझा दिया गया, उसमें सुनते नहीं हो. क्वेश्चन को पढ़ोगे तो भी आ जाएगा. If you will read the question properly, the answer will come. Without reading question, only asking sir ये बताइए वो बताइए. First of all, you read yourself, try to find out. When there is no any problem, you can't solve after best of your try. Then after you should ask. आप पहले अपने बेस्ट ट्राई करके पूछिए. पहले अपने को देख लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ के आपको आ रहा है कि नहीं. ऐसे बिना पढ़े ही मत पूछा करिए, क्लास का टाइम वेस्ट होता है. ओके, नाउ टाइम इज ओवर. ये भी तो सोफा है बैठने वाला. टाइम इज ओवर. खुद नहीं.